Karthik Venkatesh, 10 Indian language, dwells into the Santhali unique history. So Karthik Venkatesh has written a book named 10 Indian language. It talks about various other languages apart from the Santhali language. So Santhali, this Austro-Asiatic tongue, asserts a distinct script and a vibrant literature. The book illuminates a language's pivotal role in the whole revelation. So we'll talk about the tribe, we talk about this language and the whole revelations. So hello everyone, welcome to the FT Plus Academy of Civil Services, a premier organization for preparation of civil services exam. So in today's News and Focus video session, we will discuss the details of Santhali language, related tribal revolution, that is Hull revolution and a rebellion in detail. So this is an important topic for various civil services examination and the relevance for UPSC is to prelims and the GS paper 1, which includes art and culture, language, tribal revolts and the other important current affairs. So now let's jump to the context. So recently a book named 10 Indian language and how they come to be was published, and that traces the evolution, transformation and the development of Santhali language. There are various other languages included in this book like Tamil, Telugu, but this is not much important for the UPSC examination. The importance is of Santhali language. So let's jump to that. As you can see on the screen, this is the script of Santhali language, right? So let's learn some more details about the Santhali language. It is an Austro-Asiatic language that has struggled to find its place in the modern India, especially in the Constitution of India. Santhali is most widely speaking or widely spoken Adivasi language in India. But strangely, it was included in the 8th schedule only in 2003, very recently, just 20 years ago. And this is a reminder of our country's complicated politics of language, right? And as it is obvious, this is a predominant language of the Santals tribe. And when we talk about the number of total speakers or the native speaker, majority of the speaker of this language are spread in 4 states where mostly they are in the Jharkhand. So if we talk about the Jharkhand, there are 44% people who speak this language are in Jharkhand. In West Bengal, the number is 33%, in Bihar 6%, and Odisha the figure is 12%. राइट बट द स्पीकर्स जो इन चारों स्टेट्स में स्पीकर हैं इस लैंग्वेज के, दे आर नॉट इन मेजोरिटी इन एनी ऑफ द अबव मेंशन दिस 4 स्टेट्स, राइट. सो बिसाइड इंडिया द लैंग्वेज इज ऑल्सो स्पोकन इन द नेपाल एंड द बांग्लादेश, द नेबरिंग कंट्री. द टोटल स्पीकर्स की हम बात करेंगे कितने स्पीकर्स हैं परसेंटेज टर्म्स में, हमने कहाँ पे मैक्सिमम में देख लिया था. तो स्पीकर टोटल नंबर कितना है इन 2001 सेंसस, द टोटल नंबर वाज रिकॉर्डेड 6.4 मिलियन, दैट इज अराउंड 64 लैक्स. और 10 साल में यानी कि 2011 के सेंसस में द नंबर ऑफ स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेज, सेंट्रली लैंग्वेज, हैज इंक्रीज्ड, राइट. सो नाउ द नंबर इज एज पर द सेंसस डेटा 2011 इज 7.3 मिलियन स्पीकर. सो इट इज जम्प्ड इन 10 years from 64 lakhs to 73 lakhs. The family we already talked about, we already hinted that it's a Austro-Asiatic language, right? So let's learn about the tribe a little. So after the Gond and Bhil, it is the 3rd largest scheduled tribe community in the country, right? और देखिए ये कुछ फैक्ट्स हैं जो यूपीएससी पूछ सकती है या अदर स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं. The houses of Santhal community are called Ola. They are very distinct houses and they are identified from a distance. They are large, they are neat, they are attractive because they have multicolored painting on the outside wall. जो घर की outside walls होती हैं उनमें multicolored painting होती हैं, बड़े घर होते हैं, neat and attractive होते हैं. So the bottom of wall is painted with the black soil. Middle में आपके they are painted with white and the upper portion of the wall is painted with red. So let's learn about the history of the Santal. Santal tribe, the Santals came to Indian subcontinent in prehistoric time. It is believed that probably they came before the advent of Aryans or Dravidians, right? So family हमने बात की थी Austro-Asiatic है, so they are most likely came from the Southeast Asia. They have a history of migration. So they have various oral tradition, यानी कि बोल के tales बताते हैं. So the oral tradition is, if they are to be believed, they tells us various tales, और उन tales में, उन किस्सों में, उन कहानियों में they mention names of places like हेहरी फेहरी, खोज कमन, हराता, शशांक बेदा एंड चंपा. चंपा वो बिलीव करते हैं
कि एक ट्राइबल उन्हीं की ट्राइब का एक रूलर था, उसके अंडर एक प्लेस था, वहाँ पे भी पहले रहते थे। तो इस तरह के प्लेसेस का उनकी में जिक्र आता है, बट द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ दीज लोकेशंस आर नॉट नोन. But if you talk about the modern history, the first recorded mention is found in an article as early as 1795. जब एक उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे सर जॉन शोर, जहाँ पे उस आर्टिकल में ही रिफर्ड टू सेंटल्स एज सुनतर. तो सेंट्रल ट्राइब को सुनतर ट्राइब भी कहा जा सकता है. यहाँ पे ये देखिए सुनतर ट्राइब. अराउंड 1790s, उसके 20 साल तक यानी 1790 से 1810 तक उनको रीलोकेट किया गया राजमहल हिल के रीजन के आसपास झारखंड में, बिकॉज देयर वाज अ डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर. सो दे वर रीलोकेटेड फॉर द फार्म लेबर, राइट. और जो रीलोकेटेड एरिया उसका नाम कहा गया दामिनेको. फॉर सेंचुरी संथाली उनकी इकलौती लैंग्वेज थी जो बोलते थे. बाद में लिटरेचर भी डेवलप होने लगे. पहला अटेम्प्ट जैसे 19th सेंचुरी में बेंगला या देवनागरी, ओडिया, रोमन, इन स्क्रिप्ट्स को लेके ट्राई किया गया, लेकिन फाइनली एक अल्चिकी स्क्रिप्ट, कुछ एक दो डिटेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं. बट फाइनली द इंपॉर्टेंट डिटेल इज पंडित रघुराम मुर्मू. हमारी आज जो प्रेसिडेंट है उनका नाम भी द्रौपदी मुर्मू है. और स्ट्राइकिंगली द नेम ऑफ द पर्सन हु डिवाइज्ड द ओलचिकी और अल्चिकी स्क्रिप्ट, उनका भी सरनेम यही था, मुर्मू. सो पंडित रघुनाथ मुर्मू, उनको गुरु गोम के भी कहते हैं. सो इन 1925 उन्होंने इस स्क्रिप्ट को डेवलप किया, ओलचिकी अल्चिकी. इसमें साइंस एंड सिंबल्स यूज किए गए थे. दे वर हेवीली इंस्पायर्ड फ्रॉम द हिल्स, रिवर्स, ट्रीज, सिकल यानी हंसिया. करंट कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो मॉडर्न सेंटरी लिटरेचर इज वेल डेवलप्ड, और हर तरीके की हर सब्जेक्ट पर बुक्स हर साल पब्लिश होती है, राइट. रिकॉग्निशन इसको 8th शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको 2003 में इंक्लूड किया गया. एंड नाउ दिस लैंग्वेज, सेंथली लैंग्वेज, इज एन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. सो बिफोर मूविंग अहेड देयर इज वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. ऑन 25th February यानी कि आपका कल संडे को प्रीलिम्स के लिए एक मॉक टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है बाय द FT+, एंड दिस मॉक टेस्ट वुड बी फ्री एंड इट इज फॉर एस्पिरेंट और स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द UPSC प्रीलिम्स 2024, राइट. सो इसमें कोई चार्ज नहीं देना है आपको, बट यू नीड टू जस्ट रजिस्टर फॉर दिस मॉक टेस्ट. There are thousands of candidates who are going to take this test, so it is a golden opportunity for you to compete and compare yourself and to know your weak and strong areas beforehand the prelims, actual prelims. So early analysis would help you in your journey towards UPSC. There is also provision for different awards. So first top 10 ranker will be awarded. First 3 rankers को 49 mock test का free subscription मिलेगा, और जो next 7 rankers हैं यानी 4th से लेकर 10th तक, they will be provided 10 free mock test का subscription. सो यू जस्ट रजिस्टर ऑन द गिवन लिंक. जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. स्क्रीन पर QR कोड भी देख सकते हैं. यू कैन स्कैन दैट QR कोड टू रजिस्टर. Along with that, there is a Nishchay test series, all India test series program for prelims examination, and again useful for the prelims students who are preparing for the 2024 examination. राइट. सो ये बहुत ही हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डिजाइन की है. इसमें देखिए वेरियस बेनिफिट्स हैं. 4900 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, 10 रिकॉर्डेड क्लासेस, मनी बैक गारंटी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वेश्चन एंड द क्वालिटीज, राइट. सो जस्ट गो अहेड. आई थिंक जो कन्फ्यूजन्स आपके रहते हैं प्रीलिम से रिलेटेड, इट इज अ शॉर्टकट टू योर प्रीलिम कन्फ्यूजन्स, राइट. यू कैन रजिस्टर फॉर दिस टेस्ट सीरीज बाय स्कैनिंग द कोड, right, or you can visit the FT+ website, IAS Gyan website for more information. So let's move to the next information, that is Santal rebellion. इसको हुल रिबेलियन भी कहा जाता है. देखिए जो टाइम पीरियड है जो संताल रिबेलियन या हुल रिबेलियन का, दैट इज जून 1855 टू जनवरी 1856. ठीक है. इससे पहले दामिनी कू की हम बात करें, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो रीजन किसको कहा जाता है. अच्छा, अब संताल रिबेलियन पे आते हैं, क्योंकि बिकॉज संताल वाज रीलोकेटेड टू दामिनेकू बाय ब्रिटिश. सो इस रीजन में जो आउटसाइडर की एंट्री थी वो होने लगी थी, और एक्सप्लॉयटेशन संताल का होने लगा था. तो संताल ने धीरे धीरे रिबेल करना शुरू किया अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू द एक्सटॉर्शन, ऑपरेसिव पॉलिसीज
लैंड eviction, डिस्पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, फॉल्स मेजरमेंट ऑफ लैंड, इलेजिबल तरीके से उनको लैंड से बाहर निकाल दिया जाता था, इवेक्ट कर दिया जाता था। तो इन सारी चीज़ें हो रही थी। तो ट्राइबल की जो काउंसिल थी सैंताल की, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की कई सारी। सो फाइनली ऑन जून 30th 1855 को बहुत सारे लोग जुटे उस मीटिंग में, मोर देन 6000 सैंताल। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा लोग गैदर हुए थे उस दिन। सो ऑफिशियली द रिबेलियन स्टार्टेड ऑन दैट डे। सो इट बिगेन एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द मनी लैंडर, जो हमने आउटसाइडर की बात की थी, जिनको दीकू भी कहते थे। तो इट वॉज ए रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी एंड अगेंस्ट द मनी लैंडर मर्चेंट्स, ठीक है। और ये फाइनली इट वॉज टर्न्ड इनटू ए फुल फ्लेज्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। जैसे कि बहुत अच्छे से मीटिंग और प्लानिंग करी गई थी, तो इट वॉज वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वॉर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गुरिल्ला फॉर्मेशन की भी बात थी इसमें मिलिट्री टीम्स थी, डिटेक्टिव्स थे इंफॉर्मेशन के लिए, सीक्रेट बेस थे, लॉजिस्टिक्स का प्रॉपर एक अरेंजमेंट था, कोऑर्डिनेशन सिस्टम था, यानी कि एक नेटवर्क था मैसेजेस को कैरी करने का, कहाँ से कैसे पहुंचेगा, ठीक है। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा रिबेलियन वाज लेड बाय द टू ब्रदर्स नेम्ड सिद्धू एंड कानू मुमरू। तो टोटल ऑफ 32 community participated. In this illustration, it is seen that 600 Santals are attacking a party of 15 sepoy, यानी 50 जो ब्रिटिश सिपाही थे ड्यूरिंग द 1855 जो रिवेलियन के ड्यूरेशन में उन पर अटैक कर रहे हैं, राइट। लंदन न्यूज़ की इमेज है, ठीक है, और द सोर्सेज विकीमीडिया कॉमन्स, राइट। तो जैसे हमने कहा 32 कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। कोर्स ऑफ वॉर क्या था? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी माइटी कंपनी थी, वो भी इन रिबेलियंस के सामने 2 बार हार गई थी, बट फाइनली उन्होंने और फोर्स लेके आए, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे, वॉर वीपन्स थे। तो फाइनली द सुपीरियर फायर पावर ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस ओवरवेल्म्ड द नेटिव। इसमें यू वॉन्ट बिलीव दैट मोर देन 20,000 सैंथाल्स वर डाइड एंड द लीडर सिद्धू एंड कानू जो ब्रदर्स थे, दे वर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? सैंताल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 में पास किया, जिसने उनको ऑफर किया कि हाँ ठीक है, हम अब समझ गए परेशानी आपकी, थोड़ा बहुत अब आपको प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। एंड और रिलेवेंस क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस क्या है इस तरह के रिबेलियंस की? इट कंटिन्यूड टू इंस्पायर द फ्यूचर अपराइजिंग सच एज संताल इन्वॉल्वमेंट इन द 1857 म्यूटिनी। तो 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले हुआ था उनसे, तो इसने हेविली इंस्पायर किया था 1857 म्यूटिनी को, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2021 में आया था। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ट्राइब्स न्यूज में थी, हल्बी, हो, कुई, ये टर्म्स न्यूज में थी, तो उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया था विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी, हो, कुई पर्टेन्स टू क्या? ये डांस फॉर्म्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये उस टाइम पे बहुत न्यूज में थी। तो ये दिस हल्बी, हो, कुई आर द ट्राइबल लैंग्वेजेस। जहाँ पे हल्बी की बात करें हम, तो ये ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में बोली जाती है। हो जो कि वरांग चित्ती स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और 10 लाख से ज़्यादा लोग बोलते हैं। दे आर लिविंग मोस्टली इन द झारखंड एंड उड़ीसा। सिमिलरली कोई के बारे में इन्फॉर्मेशन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड लर्न दैट इन्फॉर्मेशन। कई बार यूपीएससी अपने आंसर्स क्वेश्चंस रिपीट कर देती है, तो दिस माइट बी यूजफुल। So thank you for joining today's News in Focus session for FT Plus, and I hope the discussion was relevant for your exams, and this will help you in your upcoming civil services exams, that is UPSC and other civil services. So till then, stay tuned for more information or keep visiting the FT Plus YouTube channel. Thank you for watching. Signing off.